हाँ, तो वापस स्टार्ट कर दिया मैंने। सो विल टेक अ रेफरेंस। अब तुम्हें अगर अजीब सा लग रहा हो कि ये क्या बीच में है, तो यू कैन गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो। आई एम कंटिन्यूइंग दैट कॉज आई डोंट नो सिर्फ 15 मिनट की बना सकते हैं। ओके, सो विल टेक अ रेफरेंस स्ट्रिंग द ऑर्डर इन विच द प्रोग्राम नीड्स पेजेस। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 1 2 5 1। अभी क्या एक सीक्वेंशियल प्रोसेस बना दिया ऐसा, तो इससे पता लग जाएगा। फी फोर फ्रेम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऐसे। भाई ये तो वीडियो देखनी पड़ेगी यार मुझे, ये क्या चीज़ है, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। चलो मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, मतलब अभी मैं खुद समझ के फिर तुम्हें बता दूंगा। आई मीन खुद का पढ़ना पड़ेगा यार मुझे। So now in this we will gonna discuss what is paging and frames, cause that we have to understand this particular thing, how this particular anomaly and came and all. So what is pages? I just watched this particular video. I got to know one thing, that uh, paging is a process to retrieve data from secondary memory to the main memory. So this let's say this is second memory to retrieve data from first memory in the main memory, that is called paging. Now in the secondary memory we have fixed size blocks for the pages per pages. In these pages we have uh, process. You can see this video. So all the process will be stored in the secondary memory, and we will, whenever we required some process, we will take this process into the main memory. In the main memory we also have the same size fixed blocks, like this is the fixed block. We also have these we are called frames, and we will store that particular process into this particular frames. Yeah. Now to understand, now let's ask him what is B lady's anomaly. यार सर दुख रहा है, कैसे करूंगा इतना कुछ। So Bilady anomaly phenomena operated in certain page replacement algorithms. अब यही algorithms है, like I told you we have these pages है ना, तो वो मुझे समझना पड़ेगा। रुको मैं लर्न करके आया। 1 2 3। यस, तो मैं समझ गया क्या है। पेज फॉल्ट, पेज हिट क्या है, पेज फॉल्ट क्या है, वेन एवर वी ट्राई टू एक्सेस सम पेजेस in the whenever we try to access or process in the main memory, and that particular process is not present, cause as we know we store that particular process in the secondary memory, so we retrieve that, then we access that particular thing. But whenever we try to access that, that is called page fault, that we misses, that was not in the pages. Let's say we have the fixed side memory. In this case we have three frames in the RAM. 1 2 3. Yeah, okay. First came, okay, one came. Two came, okay, two came. Three came, three came. Like this is page fault, because the first we are retrieving, then we are putting. When we are retrieving, at that time there was nothing, that is called page fault. And then four came, then we have to remove this, and this will come, two will come here, one will come here, and four will come here. Okay, and now we need one. Yeah, one is already there, that is page hit. So one is page hit, five is page fault till now, four is page fault till now. Now what is B lady anomaly? It says whenever we try to access some pages, from the page replacement technique. किधर गया ये पेन, हाँ। So a Bilady anomaly says whenever we increase the number of pages or number of frames, page frames leads to more faults instead of fewer, क्योंकि हमें लगा था हम इसको बढ़ा देंगे तो ठीक हो जाएगा, बट होगी क्या इस केस में, अगर अब तीन होगी तो 9 ही पेज फॉल्ट होंगे और 2 हिट हो जाएंगे मान लो,
और अगर 4 फ्रेम होंगे बल्कि ज़्यादा स्टोर कर रहा है फिर भी वो होगा, पेज फॉल्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी सीक्वेंस की वजह से है, ऐसी एल्गोरिदम है फीफो, और इस हिसाब से सीक्वेंस है, दोनों ऐसा कंडीशन मिलके वहाँ पे ये बन रहा है। समझ रहे हो ना तुम क्या बोल रहा हूँ? तो इससे पेज फॉल्ट ज़्यादा होगा, तो दैट इज बिलेडी एनोमली। वैसे तो कम होना चाहिए नॉर्मली, बट जनरली ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो ये बिलेडी ऐसी एनोमली आ गई कि अब ये क्या करे। समटाइम्स विद फीफो द ऑपोजिट हैपेंस, बट ये यही हो रहा है, समझ रहे हो ना, बस क्योंकि इससे सीक्वेंस आ गई है। तो ये बिलेडी एनोमली, बस इतना समझ गए, ज़्यादा नहीं, काफ़ी कुछ समझ गए से। स्टारविंग और एजिंग के, स्टारविंग मुझे जितना याद है वैसे मैं बता देता हूँ। स्टारविंग है कि एक जॉब क्यू के अंदर एक प्रोसेस पड़ा है बहुत सारे, P1 P2 P3, बहुत सारे प्रोसेस पड़े हैं। अब ये P2 रन होने वाला था, इन दोनों के बाद ये हुआ रन, ये हुआ रन, तभी एकदम कुछ और आ गया, मेन P1 प्रायोरिटी वाला आ गया, मतलब बहुत प्रायोरिटी वाला आ गया, तो वो टास्क रन हो रहा है, फिर वापस एक और आ गया, फिर वापस और ये आ गया, तो ये पड़ा ही रह गया, मतलब आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं हायर प्रायोरिटी वाले टास्क। तो ये क्या कहते हैं, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा, तो ये स्टार्व कर रहा है, ठीक है। सो दैट इज नॉट एबल टू एग्जीक्यूट हिमसेल्फ, सो दैट इज कॉल्ड स्टार्विंग। एजिंग क्या है? एजिंग इसी का है कि इसकी प्रायोरिटी इंक्रीज कर दो, वी कैन इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ पर्टिकुलर टास्क टू whom we to which we want to execute. In this case, let's say this particular v task, we will increase the priority to P1 or P2, so it can execute itself. Whenever other task come, it can execute itself first. that is that is what we say, yeah. तो ये हो गया अपने क्या, हाँ ये सारी को नीचे हो गई, वही हो गया यार काफी। व्हाई डज थ्रैशिंग अकर्स? ये थ्रैशिंग ये वैसे तो वही थी कि वर्चुअल मेमोरी के अंदर जो स्वैपिंग आउट पेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंस्टेड ऑफ एक्चुअल वर्क वी वो करते हैं। तो भी एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल सिंपल। All right, ये तो very thrashing happens when a computer spends more time swapping pages between RAM and disk, that we know, than actual running a program. This makes system slow. Okay, so होता क्या है, because too many processes running too little with too little RAM. Each process does not get enough frame to hold it working load. When a process tries to use page in not in RAM, page fault occurs. OS has load it from disk and maybe remove another page. This happens often. The CPU uses this thrashing, and this is called thrashing. हमने देखा था ये thrashing है, ठीक है। What is paging? Paging is technique of retrieving data from secondary memory to the main memory. Why do we need it? Because हाँ ये एक बार ऐसे देख लेते हैं। ये इससे ना ये अपने को सारा मतलब पूरा ओएस क्लियर हो गया, इन शॉर्ट बड़ा इजी है यार ओएस तो। तो कहाँ पे, हाँ, पेजिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो पेज क्या है? फिक्स साइड मेमोरी ब्लॉक इन लॉजिकल मेमोरी। फ्रेम क्या है? इन फिजिकल मेमोरी। लॉजिकल मेमोरी जैसे ये अपने डिस्क हो गई वैसे। Without paging we have a contiguous, we have we had contiguous allocation. When each process gets one contiguous chunk of RAM, process एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, स्मॉल फ्री ग्रैप्स रह जाएंगे, हार्ड टू गिव मेमोरी टू प्रोसेस। हाउ पेजिंग हेल्प रिमूव एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हेल्प करता है, बिकॉज एन फ्री फ्रेम कैन गिवन टू एनी पेज। हाँ सही बात है। मेमोरी टेक्निक होती है, डिमांड पेजिंग और सेगमेंटेशन क्या होता है देख लेते हैं। अरे यार ये क्या है, मैं तो मन ही नहीं कर रहा, चेस खेलेंगे यार अब 1 घंटा, छोड़ो था। उसके बाद वापस पढ़ेंगे यार बहुत ज़्यादा। Demand paging is when pages are loaded into RAM only when they needed, instead of loading the entire preset at once. ओके तो हमने पता है कि हमारे पास ये पेजेस होते हैं, कुछ ही पेज जो हमें चाहिए होते हैं वही अपन रैम रैम के अंदर लोड करेंगे, दैट इज डिमांड पे, डिमांड के बेस पे अपन पेजिंग करेंगे, दैट इज डिमांड पेजिंग, वेरी इजी। इनिशियली नन ऑफ द प्रोसेस है, व्हेन द ट्रायल स्टार्ट टू एज देयर इज नो, तो पेज फॉल्ट occurs, ओएस ट्राई टू रिक्वेस्ट लोड फ्रॉम दिस, जैसे ये डिमांड पेजिंग। बढ़िया है, समझ गए ना। सेगमेंटेशन क्या? सेगमेंटेशन इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक वेयर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू वेरिएबल साइज सेगमेंट्स बेस्ड ऑन लॉजिकल बेस्ड डिवीजन। तो ये सही रहा है। अरे भाई यार मैं नहीं पढ़ूंगा यार अब।
चलो एक करते हैं यार, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे है तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वगैरह हो जाएगा। चलो ठीक है, बंद कर रहा हूँ।